اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بنارس سے، وارانسی سے تیسری مرتبہ نریندر مودی لوک سبھا کا الیکشن لڑے ہیں۔ جی ہاں، ملک کے سب سے بڑے نیتا ہے، پردھان منتری ہے، تو اب امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ تو 8 یا 10 لاکھ ووٹوں سے جیتیں گے، لیکن نریندر مودی نے سب سے کم ووٹ لیے ہیں۔ پردھان منتری لیول کا آدمی صرف 1.5 لاکھ ووٹوں سے لوک سبھا کا الیکشن جیتا ہے، جس کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی جی جیتے نہیں ہیں بلکہ اصل میں ہارے ہیں۔ اور اب شرد جی پوار کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مودی سے زیادہ ووٹ تو سپریا سولے کو ملے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کا مودی حکومت اور بی جے پی سے بھروسہ، اعتماد اٹھ چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے زیادہ ووٹ ہماری سپریا سولے نے حاصل کیے ہیں، ایسا طنز، ایسا تیر این سی پی کے سربراہ شرد پوار نے گزشتہ کل بارہ متی میں اپنے بھاشن میں کیا ہے۔ بارہ متی لوک سبھا انتخابات میں سبھی کی نظر لگی ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر مقابلہ ننند اور بھاوچ کا تھا۔ ننند اور بھاوچ کے درمیان لڑائی بنیادی طور پر شرد پوار بمقابلہ اجیت پوار بھی تھی۔ یہ جنگ آخر سپریا سولے نے جیت لی ہے۔ شرد پوار نے کہا کہ اب لوگوں کا مودی حکومت اور بی جے پی سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ ناظرین، دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ مکھیمنتری اروند جی کیجریوال کو آخر منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت مل گئی۔ 1 لاکھ روپے کے نجی مچلکے پر راؤز ایونیو کورٹ سے راحت ملی ہے۔ کیجریوال 1 اپریل سے تہاڑ جیل میں تھے اور آج 80 دنوں بعد جیل سے اب وہ باہر آئیں گے۔ عام آدمی پارٹی میں جشن اور خوشی کا ماحول ہے۔ ای ڈی نے ضمانت کے خلاف 48 گھنٹوں کا وقت مانگا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کہ گستاخ رسول نپور شرما، آپ جانتے ہیں یہ بڑی بدنام، بڑی خبیث، مردود، ملعون عورت ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے جو حرکت کی تھی پورے ملک نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج آندولن ہوا تھا، مگر اس خبیث عورت کو پھر بھی آزاد رکھا گیا کیونکہ بی جے پی چاہتی ہے کہ ایسی خبیث عورتیں آزاد رہے جس کا فائدہ بی جے پی کو ملتا رہے کیونکہ ہندوتوا آتنکی ہے۔ خیر، گستاخ نپور شرما اس خبیث عورت کو خبریں آ رہی ہے کہ پھر دھمکی ملی ہے، اور خبریں ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ نے وائس آف خراسان میں مودی حکومت اور اس کے کئی لیڈروں کا تذکرہ کیا ہے۔ گستاخ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی ایکس لیڈر نپور شرما کو ایک بار پھر سے دھمکی ملی ہے، اور اس بار انہیں اسلامک اسٹیٹ خراسان نے اپنے نیوز لیٹر وائس آف خراسان میں لکھ کر دھمکی دی ہے، اور اس خط میں مودی حکومت اور اس کے کئی لیڈران کے بیانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس خبیث عورت کو اس سے پہلے بھی بہار کے ایک شخص نے دھمکی دی تھی جس کا نام شہناز عرف علی تھا،
जो पाकिस्तान की तंजीम से वाबस्ता बताया जाता था। ऐसी ही सूरत पुलिस ने नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले एक मौलवी सुहेल अबू बकर तमोल को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि वो पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ मिलकर हथियार खरीदने की साजिश करते हुए पाया गया। खैर, इस तरीके से बीजेपी की इस खबीस औरत को लगातार धमकियां मिल रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तमिलनाडु से। जी हाँ, तमिलनाडु में जहरीली शराब से तकरीबन 34 लोगों के मरने की खबरें आ रही है। 100 से ज्यादा का इलाज जारी है। कलेक्टर एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है और इस वाक़े की इंक्वायरी सीआईडी के सुपुर्द कर दी गई है। तमिलनाडु के हुक्काम के मुताबिक तमिलनाडु के शिमाली हिस्से के कलाकोरिची जिला में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया और कम से कम 34 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। जराये के मुताबिक इस मामले में कन्नू कोटी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उससे जब्त तकरीबन 200 लीटर गैर कानूनी शराब को भी जब्त किया गया है। खौफनाक बात यह है कि जांच के बाद जब्ती की गई शराब में मोहलिक किस्म का एक मादा केमिकल मेथनॉल की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, पापा ने वो आर रुकवा दी, पापा ने वो आर रुकवा दी। तो अब इसी को लेकर राहुल गांधी जी का बड़ा बयान वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है। कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद वो कह रहे हैं कि पापा ने यूक्रेन और रशिया की वार रुकवा दी, पापा ने गजा और फलस्तीन इजराइल की वार रुकवा दी, मगर पापा अपने मुल्क में न मणिपुर में वार रुकवा पा रहे हैं, न पेपर लीक को रुकवा पा रहे हैं। इसलिए खबरें आ रही है कि आज कांग्रेस की जानिब से मुल्क की सतह पर जबरदस्त अंदाज में पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं पर खबरें आ रही है कि यूजीसी नीट इम्तिहान को मंसूख कर दिया गया, जिसको लेकर अब नाराज तलबा ने दिल्ली में भी आंदोलन छेड़ दिया और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाज में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के तलबा भी शरीक रहे। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, अतीक अहमद के भाई अशरफ के घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। लोकसभा इलेक्शन के नताइज के बाद मैंने कल ही कहा था कि योगी आदित्यनाथ बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। अब एक बार फिर योगी हुकूमत का बुलडोजर तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो मॉब लिंचिंग करने वाले भगवा आतंकवादियों के घर को नहीं तोड़ रहा है, वो बुलडोजर सिर्फ अकबर नगर और मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों पर चल रहा है। इसी सिलसिले की खबर आ रही है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जुमेरात के दिन अतीक अहमद के भाई अशरफ के ससुराल वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अशरफ की बीवी जैनब और उसके भाई फैजी के करोड़ों रुपए की मालियत के घर को बुलडोजर चलाकर मिसमार कर दिया। मैं आपको बता दूं कि अतीक और अशरफ को गुज़िश्ता साल रमजान के महीने में कत्ल किया गया था। जैनब का यह घर 400 मुरब्बा गज में तामीर किया गया था और यह कानपुर हाईवे से मुत्तसिल था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये थी। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक यह मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाया गया था, यानी यह सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा था, ऐसा हुकूमत बता रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि राम मंदिर के बाद, जाहिर बात है कि राम मंदिर बन गया, अब राम मंदिर के बाद हिंदू राष्ट्र के लिए मुनज़्ज़म कोशिश, प्री प्लान कोशिश जरूरी है। ऐसा बयान हिंदू जन जागृति समिति के तर्जुमान का ऐसा बयान सामने आया है और खबर है कि गोवा में 24 जून से आलमी हिंदू राष्ट्र महोत्सव के इनेकाद का ऐलान भी किया गया है। हिंदू जन जागृति समिति के तर्जुमान श्री रामनाथ
ने गोवा में ये त्यौहार 24 से 30 जून तक 2024 तक मुनक्किद होगा। ये बात सतीश कोचरेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। मुंबई मराठी जर्नलिस्ट संघ में मुनक्किदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय, ऐसी और भी विरार के सदर और महाराष्ट्र मंदिर फेडरेशन के रियासती सतह के एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रदीप टंडोलकर और मराठा वॉरियर्स के और भी कई जिम्मेदारान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और वहां पर यह बात हुई है कि गोवा में 24 जून से आलमी हिंदू राष्ट्र महोत्सव मुनक्किद किया जाएगा और यह कहा गया कि राम मंदिर तो तामीर कर लिया गया है, अब मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो इनके सपनों में भी बन नहीं सकता है, लेकिन सपना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए कोशिश करना जरूरी है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग का एक भयानक आतंकवादी मामला पेश आया, जिसमें भगवा हिंदू आतंकवादियों ने बड़ी बुरी तरीके से पीट कर वहशियाना अंदाज में एक मुसलमान को मार दिया। इसी को लेकर खबरें आ रही है कि हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब और जमीयत उलमा और दीगर जमातों के वफूद ने मुतासरा शख्स के अहले खाना घर वालों से मुलाकात की और मौलाना महमूद मदनी ने इस मौके पर कहा कि मॉब लिंचिंग जैसे वहशियाना अमल की समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क के सभी तबकों के जानमाल की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। कोई हुकूमत अगर किसी तबके के साथ हो रहे मजालिम पर रोक लगाने की कोशिश नहीं करती है तो उसके दामन इन मजलूमों के खून से पाक साफ नहीं करार दिए जा सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अभी लोकसभा इलेक्शन में कई जगह पर ईवीएम के घोटाले सामने आए हैं। खुद हमारे अपने इलाके में भी जलगांव में शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार करण पवार और ऐसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के उम्मीदवार श्रीराम पाटिल रावेर मतदार क्षेत्र के रिजल्ट को लेकर लोगों में ये चर्चा हो रही है कि ये लोग हार ही नहीं सकते क्योंकि पूरा माहौल इनके फेवर और इनके समर्थन में बना हुआ था। करण पवार और श्रीराम पाटिल के हारने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, मगर ये हार गए। तो अब इसको लेकर भी चर्चा हो रही जलगांव शहर और जलगांव जिले में। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि 6 स्टेट्स की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चेक होगी। तहकीकात के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 उम्मीदवारों की दरखास्त मिली है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि अब सफेद राशन कार्ड वालों को भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। वजीर आला शिंदे का यह ऐलान सामने आया है। बताया जा रहा है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। रियासत में बरसरे इख्तिदार एकनाथ शिंदे ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की तरह सेहत की स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासत के तमाम लोगों के लिए आयुष्मान भारत की तर्ज पर महात्मा फुले आरोग्य बीमा योजना शुरू करने के फैसले का ऐलान किया है। इस स्कीम का इब्तदाई काम शुरू हो चुका है। खासतौर पर सफेद राशन कार्ड रखने वाले महात्मा फुले और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दोनों से मुश्तरका तौर पर फायदा उठा सकेंगे। जिनके पास सफेद राशन कार्ड है उन्हें आधार से लिंक करने का हुक्म दिया गया है। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।